Hello students. So in this today's video we are just going to see what are the different operations performed on table. So इस बार इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टेबल के साथ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं और टेबल में हम लोग रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं. So in this video or articles we will just talk about insert data, edit record, delete records and sorting data in table. Okay. So first we will see that how we can insert record in table. Okay. So first you can insert data into table for database table operation. तो हम लोग टेबल में दो तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट फ्रॉम डेटा शीट व्यू. सो दिस ऑप्शन इज़ वेरी सिंपल and you can just insert a record just like a working in a Excel or Calc. And second option is SQL view. So this second option providing a facility to insert a record in table with the help of SQL command. So आप इसमें SQL command की सहायता से रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एक एक करके दोनों में कैसे काम करते हैं. So first data sheet view. To insert data using data sheet view, follow this step. Step 1, open the database and select the table to insert a record. तो सबसे पहला काम क्या करना है डेटा शीट व्यू के लिए कि आप अपना डेटाबेस ओपन कीजिए और उस टेबल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं. ठीक है. स्टेप 2 क्या है? डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम. जहाँ पर आपका टेबल का नाम दिया रहता है उस जगह से आप जिस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उस टेबल के नाम को डबल क्लिक करेंगे. सो एज यू डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टेबल you will see that the table will automatically open. Now insert records into table in datasheet view is OpenOffice base. कैसे करते हैं हम लोग? Step 3, a new screen appears with the title of the table and database. Now you can see here. So new separate screen will open with the title of the table name, and then you can see here the records already entered record is just look like a Excel worksheet. So this is a very common and very easy way to enter record in table. So at last you can start entering the record as per the given field name. So field name जो ऊपर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. Okay, and as you finish the entering the record you can close the window and then you can save your file. Okay. दूसरी तरफ अगर आप SQL मोड में चाहते हैं कि रिकॉर्ड एंटर करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको SQL मोड ओपन करना पड़ेगा. तो जब आप SQL मोड ओपन करते हैं तो एक सेपरेट विंडो खुल जाता है जहां पर आप SQL कमांड एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड एंड यू विल सी दैट द सक्सेशन ऑफ द कमांड दैट विल बी जस्ट डिस्प्ले इन द विंडो. सो लेट्स सी how we can just insert a record in table with the help of SQL command. So first of all open the database and then second click on tools menu, okay, in which you can see that SQL option will be there, SQL command option is there. So a new window appears with the title execute SQL statement. And now third step, type your SQL command in the given box, okay, and then click on execute button. So as you click on the execute button, it will just execute the command and then give you a message that is command executed successfully. So this is a very simple and a very easy way to insert a record in a table. If your command is successful, then the record is automatically inserted at the last of the table, after the last record of the table. Now click on close button and click on view, refresh the table option to see the updated table. So now you can just refresh the table so that the last updation will be updated very clearly and then you can see the updated result. So this is a very easy way. You can just observe here the screen, execute SQL statement and the box given here command to execute. So you have to just write here the SQL command, okay, whatever you want to execute and then click on execute button. As you click on the execute button you will see the result either your command is successfully executed or not in a status window. So in a status window you can see that your command is either successfully completed, then it will just show here command executed successfully,
Okay, otherwise the particular error, whatever the error that will face during the execution, that error will clearly display in the status bar, the status window, so that you can just learn the error and you can rectify the error for successful execution. And finally, you can just click on close button if you don't want to insert a more record. So insert into command in OpenOffice Base. So what is the command used to insert a record? Insert into. So insert into is a command to insert record in OpenOffice Base. So you can avoid the column name if you are going to insert all records. Observe this command here. Insert into, under inverted comma double quote, name of the table is given here, and then values, whatever the values you wanted to insert in a table. So arrange the value as per the field name and their data type. Okay. Now you can edit any record in a similar two ways, like dataset view and SQL command. So how we can just edit the record in dataset view? Very simple. Open your database to edit table. Select your table and double click on it to open it. Okay. Now once your table is open, you can place your cursor on the record which you want to edit. So this is a very easy, and click on edit data, or click on edit icon available on the standard toolbar, or double click on the data you want to edit. Okay. And next, type the new data as per your requirement, as per your wish. Okay, as per your need, you can just type the new data and finally click on save button. Okay, to save your record. So it will automatically update the current information as per your enter. Okay, so this is the basic information how we can just insert a new record in database. Now open execute SQL statement window and type following commands in SQL mode. What is the command? SQL command to edit records. So update is a command to edit record. So you can open SQL command window and then type here the statement, that is update. Update, under inverted comma, write the name of the table, and then set. Set is required here to set the keyword used to set a new value. So which value you wanted to change in place of old value. Okay, so you can just write here, after set, department number is equal to 100. So department number is equal to 100. You wanted to change the department number, okay, for particular record as 100, whereas department number is equal to 10. So आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? अपडेट करना है किसी भी रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड को जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10 है, तो उन सभी रिकॉर्ड को जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उनके डिपार्टमेंट नंबर को क्या कर देना है, अब 100 कर देना है। तो आप चाहते हैं कि 10 को 100 से चेंज किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने कमांड यूज़ किया अपडेट। तो अपडेट टेबल का नाम लिखते हैं और उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सेट करना है जिसको चेंज करना, मतलब जिस चीज़ से आपको चेंज करना है वो आप सेट करते हैं। सेट डिपार्टमेंट नंबर 100, ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको बताना है जिसको चेंज करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर वेयर, जहाँ डिपार्टमेंट नंबर जहाँ पर 10 होगा उन सभी रिकॉर्ड के डिपार्टमेंट नंबर को 100। ओके, सो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि अपडेट कमांड का कैसे यूज़ करना है, जिससे कि हम लोग किसी भी पुराने वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं नए वैल्यू के साथ में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अपडेट कमांड के साथ क्या क्या यूज़ करते हैं। तो अपडेट इज़ अ कमांड टू एडिट रिकॉर्ड। तो अपडेट जो कमांड है पूरे सिंटेक्स में, वो कमांड होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया टेबल नेम, किस टेबल के रिकॉर्ड को चेंज करना है, अपडेट करना है, टेबल नेम यूज़ किया। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट यूज सेट। तो सेट क्या होता है, सेट एक कीवर्ड है जो एक वैल्यू को सेट करता है, यानी कि उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं किसी ओल्ड वैल्यू के जगह पर, मतलब आप जिस नए वैल्यू को चाहते हैं उसको हम लोग सेट के साथ में सेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट रिटर्न हियर द कॉलम नेम। कॉलम नेम हम लोगों ने लिख दिया और ये कॉलम नेम उस फील्ड को दिखाता है जिसके वैल्यू को आप चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्या किया, न्यू वैल्यू को डाल दिया। तो सेट कॉलम नेम न्यू वैल्यू। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम नेम क्या यूज़ किया है, डिपार्टमेंट नंबर, और उसका जो न्यू वैल्यू है वो है 100। ओके, एंड आफ्टर दैट वेयर वर्ड इज यूज
टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी खास रिकॉर्ड को चुनने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, जो कि किसी खास कंडीशन पर आधारित है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है आपके पास कि डिपार्टमेंट नंबर 10। तो वैसा हर रिकॉर्ड, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट नंबर 10 ही होगा, तो ऐसा हर वो रिकॉर्ड जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, केवल उनको ही चेंज करना है 100 में। सो दिस इज़ कंडीशन एंड क्राइटेरिया। ओके, तो इसके आधार पर वो काम करता है। आफ्टर दैट यू जस्ट रिटर्न हियर द कॉलम नेम्स, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये क्या करता है, उस यूनिक रिकॉर्ड को ढूंढता है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, और उसको चेंज करते हैं हम लोग सेट किए हुए नए वैल्यू से। ओके, तो ये था आपके पास काम करने का तरीका। अब आता है आपके पास में डिलीट रिकॉर्ड। कैसे हम लोग डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को टेबल से, ठीक है। सो यू कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू एंड एक्सिक्यूट SQL स्टेटमेंट। ओके, सो ओपन द डेटाबेस एंड टेबल इन अ डेटा शीट व्यू एंड ओपन द टेबल फ्रॉम यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स। तो आप पहले उस टेबल को ओपन कर लीजिए, उसका डेटा शीट व्यू भी आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। और डेटा शीट व्यू में डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लेस योर कर्सर ऑन द रिकॉर्ड इन द टेबल एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग। आप पहले कर्सर को प्लेस कर दीजिए उस रिकॉर्ड पर जिसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद आपको एक काम आपको करना है, जैसे क्लिक ऑन एडिट मेनू पर क्लिक कीजिए, एडिट मेनू पर डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन को चूज़ कीजिए। इट विल आस्क योर कन्फर्मेशन, ये आपसे कन्फर्मेशन पूछता है टू डिलीट सेलेक्टेड डाटा विथ यस और नो। तो सबसे पहला काम करना है डिलीट करने के लिए कि आप उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट मेनू पर जाना है, उसमें आपको मिलेगा डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। ये आपसे कन्फर्मेशन पूछता है कि हाँ आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। तो आप यस और नो दोनों में से जो बटन आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं डिलीट करना तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। दूसरा क्या है, डू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। और दूसरा आपके पास क्या तरीका है कि आप उस रिकॉर्ड पर अपने माउस को ले जाइए, माउस कर्सर को ले जाइए, और कर्सर को ले जाकर आप राइट माउस बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा डिलीट ऑप्शन आ जाता है। उस डिलीट ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए, वो आपसे फिर उस समय भी पूछता है आपसे वो कि यस नो, आप उसको जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तीसरा, सेलेक्ट द एंटायर रो, डू राइट क्लिक एंड चूज द ऑप्शन डिलीट रो एंड क्लिक ऑन यस बटन टू कन्फर्म डिलीशन। So this is a very easy option to delete the record from table. Now, how we can delete the record from SQL statement with the help of SQL statement? So let's see. Open execute SQL statement window. आप सबसे पहले SQL statement window को खोलेंगे और उसमें हम लोग टाइप करते हैं delete from table name। आप delete from एक कमांड हो गया हमारे पास, और डिपार्टमेंट DEPT जो है वो आपका टेबल का नाम हो गया। वेयर एक कंडीशन है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इज़ 100। तो ये आपके पास हो गया डिलीट करने का स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, डिलीट फ्रॉम एक तो कीवर्ड है, ये तो रहना ही रहना है। आप DEPT जो कि आपका डबल कोट के बीच में है लिखा हुआ टेबल का नाम, आप जिस टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। वेयर कंडीशन है ये, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर मतलब कि जो कॉलम है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड का जिसका डिपार्टमेंट नंबर 100 लिखा हुआ है उसको ये डिलीट कर देगा। तो ये भी एक तरीका होता है आपके पास में SQL कमांड के थ्रू डिलीट करने का, ठीक है। सो कॉमन फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जब हमें समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को टेबल के अंदर में, किस प्रकार से अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को, और किस प्रकार से डिलीट करते हैं, तो अब हमें ये समझना होगा कि कॉमन फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। फील्ड प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या हो गया कि टेबल का जो आपका फील्ड होता है, जो आपका हेडिंग होता है, कॉलम होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कॉमन। सो फील्ड प्रॉपर्टीज़ आर यूजफुल टू रिस्ट्रिक्ट और इनेबल डेटा वैलिडेशन इन द टेबल। सो फील्ड प्रॉपर्टी अगर आप सेट करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी को भी, ठीक है, या फिर किसी को आप परमिट करते हैं कि वो आपके डेटा के साथ में काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप डेटा का वैलिडेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी रिकॉर्ड को आप एंटर करते समय आपने उसमें कोई कंडीशन दिया, ठीक है,
इसका कंडीशन दिया मतलब कि आप चाहते हैं कि बिना रिकॉर्ड में एंटर किए हम लोग आगे न बढ़ें, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड वैलिडेशन होता है वो आपका 100% एक्यूरेट होता है। So data validations refer to the set of rules and regulation for data input. ओके, सो डेटा इनपुट करते समय आपके पास पूरा एक सेट होता है रूल्स का, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, सो डैट इनकरेक्ट डेटा और इनवैलिड डेटा कैन बी अवॉइडेड इन द टेबल। और इससे क्या होता है कि जो आपका इनकरेक्ट डाटा होता है या फिर इनवैलिड डाटा है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ फॉलो दिस स्टेप। आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओपन योर डेटाबेस एंड सेलेक्ट द टेबल टू चेंज द प्रॉपर्टी। आप डेटाबेस ओपन कीजिए, टेबल को सेलेक्ट कीजिए जिसका आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं। राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड सेलेक्ट एडिट ऑप्शन, ओके, और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द एडिट मेनू एंड चूज एडिट ऑप्शन, सो दैट opens the table in design view. So design view show the structure of the table along with data type and descriptions, etc. everything. So in design view you can see the property box also, from where you can set the new property for the table field. Now select the particular field to change the property. Okay, so some common properties of the table fields are number 1 कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास टेबल फील्ड के, जैसे ऑटो वैल्यू। सो ये ऑटो वैल्यू क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है यस और नो। ओके, सो टाइप ऑप्शन टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। ये ऑटो वैल्यू होता है। ये क्या करता है? जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेता है। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर, ओके, और रोल नंबर अगर आप चाहते हैं उस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है अगर आप इसको यस करते हैं तो। दूसरा जो कॉमन फील्ड प्रॉपर्टी है वो है एंट्री रिक्वायर्ड। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि फील्ड में वैल्यू मैंडेटरी है, मैंडेटरी कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि फील्ड में वैल्यू एंटर करना ज़रूरी है, आप बिना वैल्यू एंटर किए आप अगले रिकॉर्ड पर नहीं जा सकते हैं, तो आप इस फील्ड को, इस जगह पर इस प्रॉपर्टी को आप यस करें। तो आप जैसे ही यस करेंगे इसका मतलब क्या होता है कि आप इस फील्ड को बिना फिल किए आगे नहीं जा सकते हैं। तीसरा क्या होता है आपके पास? लेंथ। सो दिस ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द टोटल लेंथ ऑफ द सेलेक्टेड फील्ड। अब ये क्या होता है कि आप जो फील्ड आपने चूज़ किया है उसका जो लेंथ होता है, लेंथ कहने का मतलब आप कितने कैरेक्टर तक उसमें एंटर करना चाहते हैं, तो ये कहलाता है लेंथ। तो आप उसको डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस ऑप्शन प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू योर फील्ड इफ़ वैल्यू इज़ नॉट इंसर्टेड। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया जाए, इन केस अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करते हैं, उस जगह पर कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आपने असाइन किया है वो वैल्यू ऑटोमेटिक आपका उस फील्ड में चला जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मीन्स वो वैल्यू जो आपके चॉइस पर आधारित नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसमें कोई वैल्यू डालना नहीं चाहते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिक उस जगह पर आ जाता है। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो आपके पास कॉमन फील्ड प्रॉपर्टी होता है फॉर्मेट। सो इट अलाउ टू सेट योर ऑन फॉर्मेट फॉर द फील्ड वैल्यू लाइक ईमेल फॉर्मेट, जिप कोड फॉर्मेट एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है? ये आपको अलग से और देता है ताकि आप फील्ड वैल्यू में जो आपके पास ईमेल का होता है एंट्री करने के लिए, तो ईमेल का जो फॉर्मेट होता है @ .com whatever, सो उसको वो ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट अलाउ करता है। अगर मान लीजिए आप जिप कोड डालना चाहते हैं तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, वो अलाउ कर देता है। तो इस तरह से फॉर्मेट में अलग अलग वैल्यू के लिए जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है यूनिवर्सल, उसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास तरीका है जिस तरह कि आप अपने टेबल के डिफरेंट फील्ड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेबल के साथ किस प्रकार से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो अपने टेबल के फील्ड के प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीका आपके पास अवेलेबल है। फाइनली सॉर्टिंग डेटा। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या कर सकते हैं? टेबल के रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं बढ़ते क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में।
तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम ए टू जेड, और घटते क्रम कहने का मतलब होता है फ्रॉम जेड टू ए। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में किसी भी तरीके से आप पूरे रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो इन ओपन ऑफिस टू सॉर्ट डेटा जस्ट फॉलो द स्टेप्स। द स्टेप 1 इज सेलेक्ट द कॉलम विच यू वांट टू सॉर्ट। सबसे पहले तो ओपन ऑफिस में आपको अगर सॉर्ट करना है डेटा को, तो आप सबसे पहले उस कॉलम को चूज़ कर लीजिए जिसका डेटा को आप चाहते हैं अरेंज करने के लिए। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये कि हम लोगों ने यहाँ पर एस नेम फील्ड को सिलेक्ट किया है जो कि आपका अरेंज होता है। नाउ सॉर्टिंग ऑप्शन इन ओपन ऑफिस बेस। नाउ क्लिक ऑन अप्रोप्रिएट बटन फ्रॉम द टूल बार एज हाईलाइटेड इन अबव स्क्रीन सॉर्ट। ऊपर में जो दिख रहा है उसके अनुसार हम लोगों ने इसको कर लिया। नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन द sort command and it will automatically just arrange your selected field in alphabetical order. So this is very simple and a very easy work. So that's all. I hope you just enjoy the video and this article also understood the concept of database. Okay, so all the tables related questions, all the tables related queries, all the tables related information, I just try to conclude in this video. So if you just have any doubt or queries regarding this topic, you can just ask your questions in comment box, then I will try to just answer you. So thank you very much for watching this videos, database table operation for class 10. So please share this video with your classmates and friends and motivate us by hitting the like button. Okay, so don't forget to click on the like buttons to provide more and more conscious and detailed study material, so that I will just inspire and then upload more and more material for you. Thank you very much everyone.